We got to talk about Shilpa Shetty, of course, to her retro journey as well, because हमारे listeners ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं. So, shall we start with retro? Yay! Okay, पहला सवाल retro में यही होगा. You got to tell me, do you even remember, your kamars, inches in चुरा के दिल मेरा and today? Because I have a feeling it's the same. It's नहीं, the कम है. same. आज कम है. Shilpa Shetty just told me that her kamar is now lesser than the kamar that she had in Chura Can you Ke Dil believe Mein. it? It's amazing. It's amazing. It's inspiring. That's what it is. नहीं, तब मेहनत करनी नहीं पड़ती थी मुझे. अब मैं कर रही हूँ यार. Do you think that song is the most epic song that you've done, or are there more epic ones? ये मुझे बताइए सबसे. अरे यार गाने देखिए मेरी पिक्चर मैंने बहुत सारी पिक्चरें की. आई थिंक अराउंड 63 फिल्म्स आई डिड इन माय एंटायर करियर. I did Tamil, Telugu, Kannada films as well. So मेरी पिक्चरें बहुत पिटी हैं लेकिन गाने हमेशा मेरे हिट रहे. तो गाने बहुत सारे गानों को, मेरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, मेरे कोरियोग्राफर्स को मेरी सक्सेस का श्रेय जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया. एंड वो जो सॉन्ग्स रही हैं मेरी ज़िंदगी में, देव बिन माइलस्टोन. सो आई कांट पॉइंट आउट एंड से इट्स जस्ट चुरा के दिल मेरा. हाँ, चुरा के दिल मेरा एक ऐसा गाना था दैट सडनली वोक पीपल अप टू मी. तो हाँ, कि ये कौन है. I must tell you this कि आज इतने styling के साथ, and it's this not a comment, or I'm not being mean to anybody. I just feel that there is a sort of similarity when women, appear on the screen. I remember your hair in that song. It was so organic and it was just running wild. Did you style it that way? Do you remember that? Was it just your hair? Because it was just I always ask this question to myself, saying, यार ये बाल तो ऐसे छोड़ दिए लग रहा है. बाल तो कितने थे यार मेरे. आधे हो गए. नहीं, अभी है, but back in the day I was so young and we were shooting in Mauritius, मुझे याद है, and we didn't have time. We didn't have tongs, so we just used to put rollers in our hair and we used to go and stand in front of the camera. तो और तब सॉफ्ट स्टाइलिंग निकला था नलिनी यास्मिन के यहाँ, तो वो मुझे सिखाया था, तो मैं अपना सॉफ्ट स्टाइलर लेके गई थी. तो बस इतना ही किया था. और कपड़े, आप स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, कपड़ों की मैं बात करूँगी. सरोज जी, वी डिडंट हैव स्टाइलिस्ट देन. We just had dress designers who would make costumes. तो हम लोग वो खोलते थे क्योंकि वो ही होता था, बाजार नहीं होता था तब. और हम लोग क्या बोलते हैं, पुराने वाले वोग्स निकालते थे जहाँ पे भी we would get our hands on a vogue and हम लोग कटिंग निकालते थे और बोलते थे ऐसे बनाओ. तो हाँ, और हम लोगों को लगता था कि हम बहुत ही ट्रेंड सेटिंग कुछ काम कर रहे हैं. आज जब मैं देखती हूँ उन पिक्चरों को, मैंने येलो कलर का पोल्का डॉटेड ड्रेस पहना था फ्रिल्स के साथ बाजीगर में, और मैं आई वांट टू हाइड अंडर द सोफा व्हेन आई सी दैट शॉट. बर्थडे पार्टी में फ्रिल ड्रेस कोई पहनता है बताओ. And of course, who can forget Kitabin, बहुत सी, the dangri, so cute. So I had gone shopping. Okay. With Saroj ji. Okay. Saroj ji's daughter, and we went to Choice Center in Bandra. Of course. Yeah, and we went to a place in town. और वो स्कर्ट और वो लेपर्ड प्रिंट, मुझे एनिमल प्रिंट्स तब भी बहुत पसंद थे. तो वो आउटफिट मेरे पास आया और इयररिंग्स नहीं थे मेरे पास. तो जो प्रोडक्शन की पेटी है ना वीनस की, तो उसको खोला हमने, पता नहीं किसके, आयशा जुल्का के इयररिंग्स से शायद पड़े हुए पिक्चर पहली वाली पिक्चर से. They used to have all jewelry, jewelry boxes and old clothes. So I've literally taken out, rummaged through something from there and worn those earrings. Or you remember the pearl necklace in अभी तो लगे, और मैं जब गिरती हूँ, हाँ, वो टाइट्स के ऊपर दुपट्टा था, वो दुपट्टा पहना हमने. Okay, I remember I went to see मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी in Aurora Theatre. एक टिकट पे 2 शिल्पा शेट्टी. That was how people sold it to us in black, by the way. What? Of course. 2 थी ना तुम उस फिल्म में. Listen, you've just made this up. I swear. Call my mother right now. Speak to her. Yeah, we are the real audience. Yeah. We're the real public. They made a big mistake, putting one really like Sayan ki chap like on the air. Well, now you regret in leisure. Then I remember watching Bazigar. उससे पहले ही था Bazigar, मुझे याद है. And the one question that everybody wanted to know is that, and this has come from the listeners,
And apparently, one of our favorite women was supposed to play a double role in Bazigar of दोनों sisters. आपको ये बात पता थी that श्रीदेवी sign हुई थी इस फिल्म के लिए? Did you know this? नहीं थी, क्योंकि इस सवाल को काफ़ी बार पूछा गया है मुझसे. मैंने एक्चुअली रतन जी को फ़ोन करके पूछा कि मेरे से पहले आपने क्या श्रीदेवी को साइन किया था, श्रीदेवी जी को साइन किया था? तो ही सेड नो, वी हैड अप्रोच्ड माधुरी जी एंड श्रीदेवी जी, बट दे वांटेड टू प्ले अ डबल रोल, सो वी हैड ऑलरेडी साइंड काजोल. तो हम तो बहुत क्लियर थे कि हमको एक लड़की चाहिए थी जो और कोई बड़ी बहन का रोल प्ले नहीं करना चाहता था. और मैं एक्चुअली इंट्रोड्यूस होने वाली थी एक अलग पिक्चर में रौनित और रोहित रॉय के साथ, कॉल्ड गाता रहे मेरा दिल, जो जिसकी शूटिंग मैंने शुरू की थी, लेकिन वो पिक्चर बंद पड़ गई थी. तो मेरे लिए जब मैं ऑफिस गई थी तो मुझे बोला गया था कि इट्स अ रीमेक ऑफ अ हॉलीवुड फिल्म, क्या आप करेंगी, आपको ये रोल करना है. और मैंने उस वक्त डिसाइड नहीं किया था, आई वाज जस्ट 17, कि मैं इसे एक करियर बनाऊंगी शाहरुख खान के ऑपोजिट. वो भी इतने बड़े स्टार नहीं थे तब, टीवी के बहुत बड़े स्टार थे. और जब मुझे ऑफ़र किया गया था, मुझे 25,000 रुपीज़ दिए गए थे, और मेरे लिए उस वक्त में, दिस इज़ 25 ईयर्स अगो, बहुत बड़ी बात थी. तो मैंने हाँ बस इतना ही कहा कि बिकॉज द फिल्म वॉज किस बिफोर डाइंग. मुझे याद है मैंने अब्बास भाई मुस्तान भाई को कहा कि मैं किसिंग नहीं करूंगी. तो वो मुझे देख के ऐसे हंसे. डाइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे डाइंग में कोई प्रॉब्लम, किस नहीं करूंगी. That's so cute. Yeah. So and like damn central line. Let me just say that. Like I love it. Yes. तो चेंबूर आ गया ना मेरा. आ गया भाई, आ गया. देखो छोड़ती नहीं हूँ मैं. तो फिर जब मैं सेट पे गई तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि ना हिंदी आती है, ना एक्टिंग आती है, ना कुछ आता है. तो मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब्बास भाई मुस्तान भाई ने बहुत संभाला. शाहरुख का होना बहुत बड़ा एडवांटेज रहा मेरे लिए, क्योंकि आई फेड ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड इट वाज रियली जैसे एक लर्निंग कर्व सा था मेरे लिए. तो उसके बाद बस पिक्चरें मिलती गई. तो कभी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि ये मेरा करियर बनेगा. Correct, absolutely. And then of course I must talk about a film that kind of made us love you in a different light. And this was the whole sort of like the Indian woman, like you know, the Indian woman with her lover versus Indian woman, you know, once she's married. Oh my God! सबसे खास मेमोरी उस फिल्म की क्या है? बहुत सारी मेमोरीज है, क्योंकि और बहुत अरसे तक चली ये मेमोरीज, क्योंकि 5 साल लगे इसको बनने में. तो धड़कन इज माई मुगले आजम. एंड नो, आई हैव टू गिव क्रेडिट तो वेयर इट बिलोंग्स. धर्मेश जी को बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अंजलि के किरदार को कंसेप्चुलाइज किया, और तब तक मैं सिर्फ ग्लैमरस किरदार कर रही थी, और ऑडियंसेस जो थे वो एक्ट्रेसेस को उस कैरेक्टर में ही देखना चाहते. वी वर लिटरली लाइक just were fill in the blanks, because it was a male dominated industry, and it was Dharmesh's vision के मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो ग्लैमरस हो, जो सेक्सी लगे, लेकिन सलवार कमीज में. तो he was very very clear. He didn't want any cleavage, he didn't want anything short. He was वो मुझे मतलब अंजलि कह के पुकारते थे सेट पे कि he wanted me to be in that zone. और मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ऐसी पिक्चरें की थी जहाँ पे डायरेक्टर आते थे, मुझे सुनाते थे 4 गाने आपके हाँ, और 4 सीन है आपके, और मैं बोलती थी हाँ ठीक है, ओके, बिकॉज दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू फिल्म्स. हमको सेट पे डायलॉग लिख के दे देते थे, एंड वी वर्कड इन दैट काइंड ऑफ सिनारियो. तो धर्मेश जी के साथ ऐसे काम करके मुझे एक अलग अनुभव मिला, एंड आई जस्ट फेल्ट के it kind of changed the way I looked at films, the way I did my dialogues. So that was my first film where, और मैंने बहुत 2 हीरोइनों वाली पिक्चरें की थी उससे पहले. I had done other films as well, but उस ज़माने में ऐसा होता था कि there would always be one heroine, one supporting. ऐसी पिक्चरें बनती थी तब. That was a formula kind of commercial mass film. So this was, I think, my first commercial film which was made very classily, लेकिन
जो अप्रोच था बहुत मासी था. हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. तो और गाने क्या थे? क्या गाने थे. तो आप एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हैं, तो कहाँ से मैं शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आता. मुझे याद है हम लोग शूट कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, आई एम इन लव वाला गाना. अभी ऊपर से मुझे याद आ रहा है. इट वाज करते प्यार है मैं मरी गई थी उस गाने में, क्योंकि इट वॉज अराउंड -10 डिग्री सेल्सियस. वी वर ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, और सब लोग अपने होटल रूम से ना जैकेट, ग्लव, अंदर से 3 स्वेटर, थर्मल. अक्षय ने अंदर से थर्मल पहना हुआ था, नीचे से 2 सॉक्स पहने हुए थे, और मैं एक पतले सलवार कमीज में, स्लीवलेस सलवार कमीज में, नेट के दुपट्टे के साथ आई एम इन लव कर रही हूँ, और लिपसिंक नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं आई एम इन लव ऐसे निकल रहा था. तो धर्मेश को इतना गुस्सा आया था. इफ यू सी माई फेस इन दैट सॉन्ग इवन टुडे, ऑब्वियसली वो छप गया है. माई नोज वॉज पिंक, लाइक इट हैड फ्रोजन. हाथ पैर मेरे ठंडे पड़ गए थे क्योंकि उस टाइट वाले सलवार कमीज के अंदर मैं थर्मल भी नहीं पहन पाई थी. सो इट वॉज सो कोल्ड. एंड होटल में से टेक्नीशियंस जो है ना, वो अपना डुए निकाल के होटल से अपने ऊपर पहन के शॉट ले रहे थे. दिस वाज सो कोल्ड. लाइक तुम सब स्मर्फ्स लग रहे हो और यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ. और मेरे से वो शॉट हो नहीं रहा था, वो क्लोजअप लगा हुआ था. एंड धर्मेश को बहुत गुस्सा आया था. ही टुक आउट हिज जैकेट एंड ही थ्रू हिज ग्लव्स, ही टुक हिज ग्लासेस आउट, ही थ्रू इट ऑन द ग्राउंड एंड ही सेज ऐसे करना है. And he came and कांपते जब निकला पूरा, जो 4 लेयर निकले उसके बाद, और फिर till I didn't finish the shot he didn't wear his jacket. क्या बात. तो he is a very passionate director. Yes. और वो passion फिल्म में देखने को मिलता है. I feel धड़कन इतनी बड़ी हिट हुई because there was soul. Yeah. In the film, and that soul came from, the belief of the director. Radio Nasha.